Sunday after Pentecost. And the theme for today is preaching is useless unless it is contradicted by the way we live. Let us join together in prayer. Most gracious Father, you show the light of your truth to those who are in error, that they may depart from sin. Grant that we who bear the name of Christ may renounce all that is contrary to our calling and live in joyful obedience to your holy will. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, all of songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल, तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल। यीशुआ, ओ यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशुआ, ओ यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं। ओ यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं। तू है जगत की ज्योति, तू है कल आज और कल, तू है जगत की ज्योति,
मकसद, तू है जीने का राज, तू है जीवन का मकसद, तू है जीने का राज। यीशुआ हो यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशुआ हो यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं। ओ हो यीशुआ हो यीशुआ, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे जैसा है कोई नहीं। आज का हमारा इंजील का पाठ लिया गया है संत मत्ती की इंजील, उसका 23 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 12। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे,
kita Israel be'usyahid banan, kita Israel be'usyahid banan. Yahovah bina disita ishkaran, Yahovah bina disita ishkaran. मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि उस विच धरे है अदालत बेटा, कि उस विच धरे है अदालत बेटा। पिता उदे सब घराने देता, पिता उदे सब घराने देता। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए, कि आओ यहोवा के घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet and trial should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the fate shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord
आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। परमेश्वर के वचन से बोलने का अवसर जो आज मुझे मिला है उसके लिए मैं पासवान महोदय का और पूरी कलीसिया का और उन सब से बढ़कर अपने परमेश्वर का आभार प्रकट करती हूँ। और आज जो वचन जिस वचन से मुझे बोलना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती उसका 23वां अध्याय वचन 1 से 12 तक, जो हमारे बीच में पढ़ लिया गया है। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये हमारे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी, एक तरह से कहना चाहिए, पब्लिक मीटिंग थी। ये पब्लिक मैसेज जो उन्होंने दिया वो लास्ट मैसेज था। इसके बाद वो यरूशलेम जाते हैं, जहाँ पर यरूशलेम में उनका स्वागत होता है और फिर वो उनका क्रूस पर चढ़ाए जाने का हम ये देखते हैं। इसकी स्टोरी पूरी जानते हैं उसके बाद की। तो भीड़ में या भीड़ के साथ अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को वो जो शिक्षा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, ये यहाँ पर आखिरी बार हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। और हम देखते हैं कि जाते जाते उसने हमें चिताया, उसने अपने शिष्यों को, और चूंकि ये वचन हमारे लिए भी आज भी उतना ही जीवित है जितना उस समय था, इसलिए ये हमें भी चिताता है कि सुनो, तुम्हें क्या नहीं करना है। इन फरीसियों और शास्त्रियों को देखो, इनका उदाहरण देते हुए, इनका एग्जाम्पल देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनको देखो और इनके समान पाखंड मत करना, इनके समान करना मत काम। ऐसा नहीं है कि उस दौरान जितने भी सदुकी, फरीसी, शास्त्री हुआ करते, वे सब के सब करप्ट थे, वे सब के सब, उनका मन जो है प्रभु से दूर था। हम कुछ अच्छे उदाहरण भी देखते हैं। एक तो मुझे याद आता है निकोदेमस, जो प्रभु के पास जाता है और सचमुच में ही वॉज सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर से, प्रभु से सचमुच में परमेश्वर की बातों को सीखना चाहता था और परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखना चाहता है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं शाऊल के जो गुरु थे, उनका नाम गमलिएल जो थे, हम उनके बारे में भी प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया को उन्होंने काफ़ी हद तक एक तरह से टॉलरेट किया उसको। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु उसको अपनी सहनशीलता उन्होंने दिखाई। और हम जानते हैं कि उन्होंने पौलुस को जो शिक्षा दी वो सचमुच में जीवित परमेश्वर के बारे में उसको सही ज्ञान और तोराह का सही ज्ञान उसने पौलुस को दिया। बट चूंकि प्रभु यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री है इस संसार में, जब वो 3-3.5 साल जो उन्होंने काम किया, सेवा की, उसमें बहुत बार ऐसी बातें हुई, बहुत ऐसी घटनाएं घटी जब उन्होंने सदूकियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को फटकार लगाई, उनको डांटा, उनके पाखंड को उजाले में लेकर के आए और उनको कई बार कड़ाई से और बहुत ही तीखे शब्दों में उनको डांट लगाई। हम जानते हैं कि भले सब ऐसे ना हो, पर मोस्ट ऑफ देम दे वर करप्ट, मोस्ट ऑफ देम दे वर करप्ट। और अपने पद और अपने जो रिलीजन उनका था, उनका जो पद था, उनका जो ओहदा था, उसका इस्तेमाल वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया करते थे और खुद को प्रमोट करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए अपने पद का हमेशा वो प्रयोग करते थे। यहाँ पर जो बात मैं देख रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, वो ये है कि किसी भी प्रकार का पाखंड या किसी भी प्रकार से वो दिखाना जो हम नहीं हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करना, अपने धर्म का इस्तेमाल करना, अपने पद का इस्तेमाल करना, इसलिए कि हम समाज में प्रतिष्ठा पा सकें और 4 लोगों में हमारी वाहवाही हो, हमारी बड़ाई हो, ये प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। लिखता है, बाइबल में लिखता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। अध्याय 23 जिसको हमने आज पढ़ा है, उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है 1 से 12 तक, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों और वहां खड़ी जो भीड़ है उससे बातचीत कर रहे हैं, उनको एक संदेश दे रहे हैं। 13वें पद से 36वें पद तक हम देखते हैं कि वहां पर हाय तुम पर, उनके पाखंड पर, उनके दिखावे पर, सदुकियों और फरीसियों को वो कहते हैं कि हाय तुम पर। और आखिरी के 2 वचन जो हैं उसमें यरूशलेम के ऊपर वो विलाप करते हैं।
दुख अपना प्रकट करते हैं यरूशलेम के ऊपर। और मुझे जो आज भाग मिला है वो 1 से 12 का है, और आज हम लोग उसी 12 वचनों पर फोकस करने की, उस पर थोड़ा सा ध्यान, उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि वो हमारी सहायता करे इस वचन को समझने में। आइए प्रार्थना करेंगे और आगे हम इस चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज जो कुछ तैयारी आपके वचन से सुनने की, सीखने की हमने की है, प्रभु जी आप दया करके हमें अपने ज्ञान और अपनी आत्मा से भरें कि हम आपके बातों को और आपके कहे हुए वचनों को समझ पाएं। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हुए मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। पहला से लेकर 3 वचन 23 अध्याय का कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। सीट या गद्दी जिसकी बात हो रही है, हम देखते हैं एक तरह से एक पोजीशन है, एक पद है जिस पर वे बैठे हुए हैं, जिसको वो होल्ड करते हैं, जिस पद को। और इस पद पर बैठने वाले के पास व्यवस्था को सिखाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि मूसा की गद्दी इसलिए कही गई है क्योंकि हम जानते हैं मूसा जो है वो व्यवस्था का देने वाला ठहरा। उसके द्वारा प्रभु ने इजरायलियों को अपनी व्यवस्था, अपने नियम, अपने लॉ जो हैं वो बताए और उनको उसने लिखा। तो मूसा की गद्दी पे जो बैठा है, जो उस अधिकार को पाया हुआ है, अथॉरिटी को पाया हुआ है, उसके पास इतना हक है कि वो व्यवस्था की बातों को, शिक्षा को लोगों को सिखा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये जो शिक्षा देते हैं उनको सुनना, उनको करना, पर इनके से काम मत करना, वैसे काम ना करना जैसे इनके हैं। हम जानते हैं कि जो व्यवस्था की किताब है उसको हम तोरा कहते हैं, लॉ की बुक कहते हैं। और जितने भी नियम उस समय मूसा के द्वारा प्रभु ने दिए, परमेश्वर ने दिए, यीशु मसीह के काल तक आते आते इसमें सदूकियों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा कई ऐसे और लॉ उसमें ऐड कर दिए गए। 10,000 नियम कायदे और जोड़ दिए, कई प्रकार की बातें उसमें और ऐड कर दी। ट्रेडिशन के नाम पे, परंपरा के नाम पे बहुत कुछ उनके लिए। और और मैं इसी अध्याय को पढ़ रही थी और उसमें यहाँ तक नियम कायदे बना दिए कि आपके घर के सौंफ, जीरे और पुदीना का भी जिक्र यहाँ पर मिलता है। मतलब हमारे किचन में क्या सामान है उस पर भी नियम कायदे हैं, उसके ऊपर भी हमें क्या करना है वो इस व्यवस्था में इन लोगों ने ऐड करके बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने से ऐड कर दी। और ये सारे नियम और सारे कायदे कानून जो हैं वो दूसरों से करवाते थे और खुद उंगली सरकाने बराबर भी काम नहीं करते, खुद कुछ भी लॉ को मानना नहीं चाहते, परंतु सारा कुछ जो है, सारा कुछ जो नियम बनाए हुए हैं, सारा कुछ लॉ बनाए हुए, रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए, सब दूसरों के लिए है। फ्रेंड्स, विथ अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे पास अधिकार है किसी बात का तो उसके साथ जिम्मेदारी भी है। और वी सी दैट दे हैड अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने अधिकार जो उनको प्राप्त था मूसा की गद्दी पर या लॉ सिखाने वाले शिक्षक के रूप में जो अधिकार उनको प्राप्त था, उस अधिकार को उन्होंने सही तरह से समझा ही नहीं। उनके लिए बस अथॉरिटी का मतलब ये था कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, तुम ये करो, दूसरों से ही काम करवाना। हम लोग जो पद या कोई ओहदा होल्ड करते हैं, कोई टाइटल होल्ड करते हैं, यदि हम किसी पोजीशन पे हैं, कुछ अधिकार हमें मिले हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स कि हम इससे पहले कि दूसरों को बोलें कि तुम ये करो, उनके ऊपर नियम लगाएं, उनके ऊपर कायदे लगाएं, इससे पहले हमें खुद उस चीज़ को करना है। पौलुस कहता है कि मैं जिस बात का प्रचार करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद उसमें निकम्मा ठहरूं। हमारा प्रभु भी कोई ऐसा काम, ऐसी बात नहीं है कि उसने ना किया और हमसे अपेक्षा की हो, हमसे कहा हो करने जो उसने खुद ना किया हो। निसंदेह हम देखते हैं कि पौलुस जैसा कहता है कि यदि मैं और आप जिस बात का प्रचार करते हैं उसको खुद ना करें तो हम उसमें निकम्मे ठहरे। और यहाँ पर ये लोग निसंदेह निकम्मे थे क्योंकि वे जो बोलते थे उसे करते नहीं थे। उनका मन, वो मुंह से परमेश्वर तो कहते परंतु मन उनका कोसों दूर होता था प्रभु से।
उन्हें अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिखाई देता, परंतु सबके तिनकों को, सबकी आँखों के तिनकों को वो बराबर देख लेते, परंतु अपनी आँख का लट्ठा वो देख नहीं पाते थे। फ्रेंड्स, हमें से प्रत्येक इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम लोग किसी भी पद पे हों, ओहदे पे हों, हम इस बात को हमेशा सावधानी बरतें, ध्यान रखें कि हम जो लोगों को शिक्षा देते हैं या हम ये चाहते हैं कि दूसरे करें, उसको हमें पहले खुद करके दिखाना है। हम जो प्रचार करते हैं, जो प्रीच करते हैं, उसको अपने जीवन में पहले लागू करके, एग्जाम्पल सेट करके, उदाहरण पेश करना है। क्योंकि यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वे जो बोलते हैं वह करते नहीं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाखंड कहलाता है। और इसमें कोई बड़ाई नहीं कि दुनिया मेरी और आपकी वाहवाही करे, दुनिया मेरे और आपको नमस्कार करे, मुझे टीचर कहे, स्वामी कहे, तरह तरह के टाइटल से मुझे पुकारे, और परमेश्वर मुझे ऊपर से देख के मेरी निंदा करे और मुझे कहे कि ये पाखंड है। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। भला तो यही होगा कि प्रभु हमारी प्रशंसा करें। चौथा वचन जो है वो कहता है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। So we see they had a very wrong concept of authority, and now here we see that they had a wrong concept of ministry as well. सेवकाई क्या है, प्रभु का दास होना क्या है, और प्रभु के सेवकाई में किस प्रकार की नम्रता और दीनता की आवश्यकता है, इस बात से वो वाकिफ नहीं है। उनके हिसाब से मिनिस्ट्री का मतलब है कि 50,000 नियम कायदे आप बना लें और दूसरों के सिर पर थोप दें और उनके बर्डन में और ऐड करें, उनको और बोझ उनके कंधों पे डाल दें। क्या ये सेवकाई, इसका अर्थ सेवकाई है? ये जो काम हो रहा है, क्या हम इसे सेवकाई बोल सकते हैं? क्या इसको हम सर्विस टू गॉड बोल सकते हैं? एक तरफ हमारा प्रभु है जिसने कभी भी ऐसा कोई काम हमसे करने को नहीं कहा जो उसने ना किया हो, और एक तरफ ये है जिन्होंने वो हर काम दूसरों से कराया जो वो खुद नहीं करते। क्या परमेश्वर का दास होना इसको कहते हैं कि हम दूसरों के लिए 10 रूल बना लें, दूसरों से हम हर प्रकार की धार्मिकता की अपेक्षा करें, हर प्रकार की सच्चाई की अपेक्षा करें और खुद उसमें निकम्मे ठहरें? क्या इसमें कोई बड़ाई है कि हम उनके कंधों पर इतना बोझ डाल दें कि वो गिर पड़े और तब हम खड़े होकर अपने आप को धर्मी और अपने आप को उनसे महान साबित करें? पांचवा से सातवां वचन कहता है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हम देखते हैं कि आपको और मुझे अपनी धार्मिकता की नुमाइश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वचन 12 यहाँ पर, इसी अध्याय का जो वचन 12 वो कहता है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहे, जो बड़ा होना चाहे, वो पहले अपने को छोटा करे, नम्र करे, दीन करे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो परिभाषा है एक तरह से कि हम अपने को धार्मिक बताने के लिए या हमारी बड़ाई या हमारा प्रोग्रेस, हमारा विकास इसमें नहीं है कि हम लोगों से रिकग्निशन हम ढूंढें, लोगों में उनसे हम अपने प्रेज ढूंढें, उनके मुंह से अपनी बड़ाई सुनना चाहें। इसमें कोई मेरा और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है। परमेश्वर क्या सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया क्या सोचती है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, पर प्रभु आपके और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उनकी परवाह होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों से अपनी बड़ाई कराने और अपनी वाहवाही लूटने के लिए प्रयासरत रहें। अगर मैं और आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो भलाई के हो, धर्म के काम हो, कुछ भी अच्छा, और ये सोचकर नहीं करते कि इट इज़ अ सर्विस ऑफ एक्ट ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड, अगर मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि दिस इज अ एक्ट ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड, पर मैं ये सोच के कर रही हूँ सो दैट आई कैन कैच द अटेंशन ऑफ अदर्स, देन ये परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े से भी गए गुजरे हैं।
अब परमेश्वर यहाँ पर उदाहरण के साथ उनको समझा रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। सुनो, वो लोग अपनी ताबीज़, यहाँ पे ताबीज़ का जिक्र आया है और कोड़े का वस्त्रों की जो कोड़े होती हैं उसका जिक्र आया है। लिखते हैं कि जो ताबीज़ होती थी वो छोटे छोटे लेदर का ऐसा बॉक्स हुआ करता था जिसके अंदर हिब्रू में स्क्रिप्चर्स लिखे होते थे। और व्यवस्था विवरण में हम इसका जिक्र पाते हैं जब परमेश्वर कहता है कि उन्हें अपने बाहों में और अपने माथे पर लगाओ। और डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि इसको हम लिटरली नहीं ले सकते। ये कहीं ना कहीं हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने मन में व्यवस्था को बसा लो, उसके अनुसार चाल चलो, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। इसका कहीं से ये मतलब नहीं कि आप अपने माथे में बांध लें, अपने बाहों में बांध लें और इस तरीके से। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए लिखा है कि वे ताबीज़ को बांध कर निकलते हैं बाजारों में, भीड़ में, और चौड़ी करते जाते हैं। कोई छोटी लगाया है तो दूसरा कोई उससे बड़ी लगा लेगा, उसका तीसरा कोई और बड़ी लगा लेगा। तो जितनी बड़ी ताबीज़ उतनी ज़्यादा धार्मिकता। और अपने वस्त्रों की कोड़े बढ़ाते जाते हैं कि देखो हम कितने धर्मी हैं, हमने इतनी सारी ताबीज़ें पहन रखी हैं, हमने इतने स्क्रिप्चर अपने बदन पर लिख रखे हैं। हमें अपने धार्मिकता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय मित्रों। हमें किसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत नहीं, कोई खास वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है जिससे हम अपने आप को धर्मी साबित कर पाए और प्रमाणित कर पाए। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये काम परमेश्वर के हाथ में ही छोड़ दिया जाए। वही डिसाइड करे कि मैं और आप कितने धर्मी हैं। मैं और आप केवल ये करें कि हम भलाई के काम करें और प्रेम का प्रदर्शन करें। यदि कुछ प्रदर्शन करना ही है, नुमाइश करनी ही है, तो प्रेम की नुमाइश करें। वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारी नहीं परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई कर सके। ऐसे मन से काम करें, ऐसी इच्छा, ऐसे इंटेंशंस के साथ काम करें जिसमें हम अपनी बड़ाई नहीं ढूंढ रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम को देखकर लोग हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें और हमारे आपसी प्रेम को देखकर लोग ये जान सके कि हम मसीही हैं। इस दो चीज़ के अलावा मुझे और ऐसी कोई बात नहीं लगती जिसका प्रदर्शन करने की हमको आवश्यकता है। कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई क्रॉस पहनने, कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें काफ़ी है जहां हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा सकें। लिखा है कि सभाओं में अच्छी अच्छी सीट चाहते थे, अच्छी अच्छी जगहों पर बैठना चाहते थे, भोज में उत्तम स्थान में बैठना चाहते थे। मनुष्य के कपड़े, मनुष्य की ऑर्नामेंट्स, वो कहाँ बैठता है, कितने लोग उसको नमस्कार करते हैं, क्या ये सारी बातें उनके आंतरिक चरित्र को बेहतर कर सकती हैं? क्या वो जो हैं अंदर से, क्या उनका संबंध इन बातों से है? क्या कोई दुष्ट बड़ी सीट पर बैठकर, ऊंचे स्थान पर बैठकर धर्मी बन सकता है? या कोई धर्मी यदि छोटे सीट पर बैठ जाए, पीछे की सीट पर बैठ जाए, तो उसकी धार्मिकता नहीं रही? परमेश्वर की दृष्टि में ये सारी बातें कुछ मायने नहीं रखती। ये सिर्फ हमारे लिए है, ये सिर्फ हमारे समाज में हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि कौन कहाँ बैठ रहा है, पर प्रभु की दृष्टि में इनका कोई मोल नहीं है। बाजारों में नमस्कार करवाने की चाह रखना, मैं इसको पढ़ रही थी तो इसमें जैसा लिखा है कि मनुष्यों बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उनको भाता है। अर्थात उनके अंदर एक बहुत इच्छा है, मन में चाह है कि लोग मेरे को रब्बी बोले, लोग मुझे नमस्कार करें, मुझे प्रणाम करें, सलाम करें, झुक कर मेरे पाँव पड़े। ये अंदर चाह, कितना उसको पढ़ने से बड़ा मुझे हास्यास्पद लगा। एक बुरा भी है और साथ ही साथ हास्यास्पद भी है कि ऐसी चाह मन में रखना कि हम जब बाजार में निकलते हैं तो 4 आदमी हमको नमस्ते करें, 4 लोग हमको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोले, 4 लोग हमारी तारीफ बड़ाई में खड़े हो जाएं। ये चाह भी रखना कितना हास्यास्पद है, कितना इसमें हंसी आती है सोचने में कि इस प्रकार की कोई चाह, पर ऐसा है। इसलिए प्रभु इस वचन को लिखते भी है कि वो चाहते हैं मन में कि 4 लोग निकल कर बाजार में और यहाँ और वहाँ उनको बेहतर सीट में बैठाएं, अच्छी जगहों पे खड़े उनको बैठाया जाए और लोग उनको नमस्कार करें। बिशप
आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टाइटल्स हम लोग भी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बिशप्स हैं, हमारे रेवरेंड्स हैं, हमारे पास्टर्स हैं, डिकन्स हैं, डॉक्टर हैं, और भी बहुत कुछ हम लोग टाइटल यूज़ करते हैं। तो इन सब उपाधियों का होना या उनका इस्तेमाल करना या उनको ये कहकर बुलाना, बिशप साहब, पादरी साहब, ये साहब, वो साहब, इसमें कोई बुराई नहीं है। टाइटल होल्ड करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम बोलते हैं ऐसा। पर समस्या तब शुरू होती है जब ये सारी उपाधियां, ये सारे टाइटल्स, ये सारा पद जो है उसका उपयोग हम लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करें। जब हम अपना नाम करने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए अपने आप को डॉक्टर सो एंड सो कहलवाना चाहें, रेवरेंड सो एंड सो कहलाना चाहें, बिशप सो एंड सो, अगर मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपनी बड़ाई कराने के लिए ये देखूं कि लोग मुझे डॉक्टर सो एंड सो बुलाएं, समस्या यहाँ है। हम में से प्रत्येक जो हम में से हर कोई ना कोई टाइटल होल्ड करता है। हम कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, हमें किसी न किसी चीज़ से बुलाया जाता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर हम इस बात को ध्यान रखें कि ये सारी बातें कहीं हमारे सिर पे ना चढ़ जाए, कहीं हमारे सिर पर चढ़कर हम पे हावी ना हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा इनको चाहने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा इनको एंजॉय करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि ये हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लें। हम अपने आप को जांचें कि हम ऐसे लोभ में ना पड़े। ऐसे वचन भी जैसे कहता है ना कि धन रखना कोई बुरी बात नहीं, पर धन का लोभ वो बुरी बात है, क्योंकि धन के लोभ में पड़ करके कितनों ने अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया है। और हम किसी भी प्रकार का लोभ करें, किसी भी प्रकार का, वो जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर का स्थान, वो जिस चीज़ का लोभ हम कर रहे हैं, जिस चीज़ का लालच हम कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेता है। और ठीक ऐसा यहाँ पर भी है कि टाइटल्स रखना या होना जो हमको मिलते, इट्स वेरी सिडक्टिव आई वुड से, एंड अवर एनिमी कैन यूज इट टू टेम्प्ट अस। शत्रु हमारा इसके द्वारा हमको टेम्प्ट करने, हमको परीक्षा में डाल सकता है। इसलिए हम में से प्रत्येक जो ऐसे टाइटल्स होल्ड करते हैं वो सावधान रहें और अपने मन को हम जांचें कि हम कहीं इसको चाहने वाले तो नहीं हो गए, कहीं हमको ये सारे टाइटल्स और अपने आप को सो एंड सो कहलाना भाने तो नहीं लग गया है। बहुत से ऐसे, बल्कि मैं ऐसे एक दो लोगों को जानती भी हूँ। एक घटना मुझे याद आती है कि हम लोग बैठे हुए थे कहीं और एक शादी का कार्ड, जिस घर में मैं थी वहाँ पे किसी बंदे ने आकर के एक शादी का कार्ड इनविटेशन दिया और उसमें लिखा था मिस्टर सो एंड सो। उन्होंने उस शादी का कार्ड लौटा दिया और कहा कि मिस्टर काट करके रेवरेंड सो एंड सो लिखिए। और मैं वहाँ पे मौजूद थी। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बात के लिए शादी का कार्ड लौटा रहे हैं। और यही इनके संग एक और घटना मेरी घटी कि तब भी मैं वहाँ पर थी कि कहीं पर सभा में उनको बुलाया गया ऊपर स्टेज पे और मिस्टर सो एंड सो कह दिया गया। ऊपर गए और उन्होंने कहा कि सुनिए, मैं मिस्टर ये नहीं हूँ, मैं रेवरेंड ये हूँ। तो जो पुकारने वाला था उसने करेक्ट किया और कहा मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं सो एंड सो, रेवरेंड सो एंड सो है। ये कितना हास्यास्पद है कि आप ऊपर चढ़ करके अपने नाम को करेक्ट करा रहे हैं कि वो टाइटल आपके नाम के साथ नहीं लगाया गया। प्रभु का धन्यवाद हो उन सब पदों के लिए, उन सब उपाधियों के लिए जो हमको प्राप्त है। हमने जो सेवा दी या पढ़ाई की उसके कारण से जो टाइटल्स हमको मिले हैं, जो उपाधियाँ हमको मिली है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हम सब के लिए। बट हम ये बात को भी स्मरण रखें कि ये सारी उपाधियां यही रह जानी है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ याद आती है। या तो प्रभु ये कहेगा वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, कि मेरे क्या लिखा है हिंदी में है कुछ कि मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, या फिर निकम्मे दास। सर्वेंट ही मुझे लगता है वो टाइटल है जो शायद ऊपर तक हमारे साथ जाए। अदरवाइज ना तो हमारे संग बिशप का टाइटल जाएगा, ना रेवरेंड का टाइटल जाएगा, ना पास्टर, ना डॉक्टर, ना पीएचडी होल्डर या और कोई भी टाइटल जो हमको मिला हुआ है, ये इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला।
सिवाय इसके कि हम यदि ऊपर पहुंचते हैं तो प्रभु या तो हमको फेथफुल सर्वेंट कहेगा या निकम्मा सर्वेंट। वचन 8 कहता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह। देखिए, इस वाले पद को हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करके देखेंगे, बैलेंस बनाकर देखेंगे कि इनके विषय में अदर स्क्रिप्चर्स जो हैं और दूसरी जगहों पे बाइबल क्या कहती है। मेरा जो सोचना है वो ये कि कोई भी चीज़ यहाँ पर जो प्रभु जो इस पर फोकस कर रहे हैं, या जो इनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी चीज़ परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। कोई भी टाइटल, कोई भी बात परमेश्वर की जगह पे खड़ी नहीं हो सकती। और हम ऐसा नहीं है कि हम अपने शिक्षकों को हम शिक्षक बोलते हैं। इनफैक्ट इफिसियों में भी हम देखते हैं कि किसी को शिक्षक होने की भी बुलाहट है, वरदान प्राप्त है, किसी को प्रचार का वरदान है, किसी को शिक्षक, किसी को अपोस्टल, किसी को इवेंजलिस्ट। तो ये टाइटल यदि किसी के पास है, यदि हम किसी को टीचर बोलते हैं या मास्टर बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, और हम अपने बायोलॉजिकल जो हमारे पिता हैं, फादर्स हैं, हम उनको पिता बोलते हैं, तो हम इसको डिफरेंट लाइट में देखेंगे कि इसका कहने का जो अर्थ है वो ये नहीं कि हम यहाँ पर हम किसी को टीचर नहीं बोल सकते, किसी को हम फादर नहीं बोल सकते, बट ये सब कुछ जो है ना वो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से हमको देखना है कि हमको ये देखना है कि ये आत्मिकता को सामने रख के, संसारिकता में नहीं परंतु आत्मिकता में हम इसको देखना चाहेंगे कि परमेश्वर का स्थान जो है वो कोई नहीं लेना चाहिए। और हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम किसी को गाइड करते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग किसी को स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर बोलते हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हम देखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हम जब भी किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो ये सोच कर करें कि हमारा पिता एक ही है और हम सब उसके सामने बराबर हैं। तो मैं जो सिखाने वाली हूँ, मैं उस सीखने वाले से बड़ी नहीं हूँ, पर हम सब उसके बच्चे हैं और पिता एक ही है। इसलिए सिखाने वाला अपने को बड़ा न माने, अपने को ज़्यादा महान न समझे सीखने वाले से। और यहीं पर मैं सोचती हूँ यही उस बात को प्रभु यीशु मसीह जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ टाइटल्स और ओहदे और पद जो लोगों को प्राप्त हैं उसके कारण हम बस उसी को हम ना देखें। जब हम किसी को देखते हैं, किसी को हम सम्मान देते हैं या किसी को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, तो हम केवल उनके ओहदों को सामने रख करके बात ना करें, परंतु ये भी देखना ज़रूरी है कि मसीह में उनका स्थान कैसा है। क्योंकि हम जिसको भी रब्बी कहकर, टीचर कहकर, शिक्षक कहकर बुलाएं तो इसलिए बुलाएं क्योंकि वास्तव में वो ऐसा है। जो होल्ड करता है टाइटल्स वो भी इस बात को ध्यान में रखे कि उस योग्य चाल चले, और जो सामने से सम्मान देता है वो भी इस बात को देखे कि वास्तव में वो ऐसा है जैसा हम उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं या जो हम रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं। सो टाइटल्स और उपाधियाँ जो हैं वो रॉन्ग नहीं हैं, बट लव फॉर टाइटल्स, लव फॉर उपाधियाँ, दिस इज़ रॉन्ग। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो वास्तव में इसके योग्य होता है ना, वास्तव में जो इन सब पदों को होल्ड करने के योग्य होता है, या जिनके नाम के आगे हम बड़े बड़े टाइटल्स लगाते हैं, जो वास्तव में इसके योग्य होता है, वो यदि आप उनके नाम के आगे टाइटल्स ना भी लगाएं तो भी आपको मुस्कुरा के जवाब देगा। वो शादी का कार्ड लौटाएगा नहीं यदि उसके नाम के आगे रेवरेंड नहीं लिखा है। वो तब भी नम्रता और दीनता से आपको रिस्पॉन्ड करेगा जब आप रेवरेंड या बिशप या और कुछ डॉक्टर कहकर ना भी पुकारें। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, इतना नम्र मन रखते हैं, वास्तव में वे ही लोग योग्य हैं। 11वां और 12वां अंतिम वचन कहता है, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक महानता क्या है, या ट्रू ग्रेटनेस क्या है। सच्ची महानता जो है ना, इसी बात में है कि हम अपनी सेवा ना करा करके दूसरों की सेवा करें, जैसा कि प्रभु ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उदाहरण हमारे सामने दिया, नमस्कार
सुनने के लिए हमारे कान तरस जाएं, या बाजार में या हम अपॉर्चुनिटी ढूंढें जहाँ पर हमें प्रतिष्ठा मिल सके, ये एक सेवक के गुण नहीं हो सकते। दुख की बात है कि ये जो सदूकियों का, फरीसियों का और शास्त्रियों का जिक्र यहाँ पे आया है, ये दुख की बात है कि जिनको प्रभु का दास होना था, जिनको सेवक होना था, वो पाखंडी बनकर रह गए, और ये दुखद है। प्रिय मित्रों, महान बनने का या बड़ा बनने का कोई नुस्खा नहीं है सिवाय इसके कि हम परमेश्वर के प्रति नम्र और आज्ञाकारी बने रहें, और ये नम्रता और आज्ञाकारिता से ही आती है। परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा होने का अर्थ है यहाँ हम अपने आप को नम्र और छोटा करके रखें, और तब हम परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचे उठते हैं। यदि हम अपनी आँखों को घमंड से ऊंचा करते हैं, अपने पद का या किसी भी बात का हम घमंड करते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर उनको नीचा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आँखों को परमेश्वर नीचा करता है। और पहला पतरस उसका 5 और 6 कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता से रहो, तब वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको अवश्य ऊंचा उठाएगा जब हम उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्रता और दीनता से बने रहें। दूसरों को देख करके सीखने की जो कला है, वो हम लोग आसानी से सीखते नहीं है, या कहना चाहिए कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग समय लेके सीखते हैं, कुछ लोग जब उन पे गुजरती है, जब उनको दंड मिलता है तब सीखते हैं। यहाँ पर सदूकियों का और शास्त्रियों का उदाहरण दे करके प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि देखो, इनके समान मत करना। और मैं सोचती हूँ कि हम सब ये देख करके ही सीख लें। घर में जब 2-3 भाई बहन हो और बड़े को डांट पड़े, तो समझदारी इसमें है कि छोटे भाई बहन वो देख लें कि ये काम करने से मम्मी ने भैया को डांटा है, मारा है, तो हम ना करें। और बेवकूफ़ वो होगा जो उसको करे और खुद भी डांट खाए। अच्छा होगा कि हम ये स्किल को लर्न करें जहाँ पे हम दूसरों की गलतियों को और दूसरों को दी जाने वाली शिक्षाओं को सुन करके अपने ऊपर भी लागू कर लें। ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम ऐसा करें। मैं भी आशा करती हूँ कि परमेश्वर के हाथ में पढ़कर वो हमें सुधारे या डिसिप्लिन करे। कभी कभी दुखद हो जाता है। यदि हम दूसरों को देख कर सीखें, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं, सबको प्रभु तरक्की दे, सबको उठाए और ऊंचे पदों पर बैठाए। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी जो ये है कि हम उसका लोभ ना करें और उन पदों को, उन बड़े नाम को परमेश्वर से ज़्यादा ना चाहें। प्रभु हम सब की सहायता करें कि आज के वचन को हम अपने हृदय में जगह देने वाले हो सकें और ये वचन हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में 100 गुना फल ला सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे।
दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, ये इनायत करें कि आपका पाक रूह आपकी कलीसिया में इस कदर काम करे कि हम अपनी जिंदगी को टटोलें और हम अपने अल्फाजों पर ध्यान दें कि खुदावंद हमारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी बादशाहत को बढ़ाने वाले हो सकें। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.